بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ لوگوں کو آئسومیرزم اور اس کی اقسام کے بارے میں بتاؤں گا۔ آئسومیرزم ایک فینومینن ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ کمپاؤنڈز ایک جیسے کیمیکل فارمولا رکھتے ہیں لیکن ان کا کیمیکل سٹرکچر مختلف ہوتا ہے، تو ایسے فینومینن کو آئسومیرزم کہا جاتا ہے۔ اور آئسومرز کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کیمیکل کمپاؤنڈز دو یا دو سے زیادہ جن کا کیمیکل فارمولا ایک جیسا ہو لیکن اس کے مالیکیول میں ایٹموں کی ارینجمنٹ مختلف ہو، ایسے دو یا دو سے زیادہ کمپاؤنڈز کو آئسومرز کہا جاتا ہے۔ ٹائپس آف آئسومیرزمز، آئسومیرزم کو مینلی دو براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پہلے کو کہتے ہیں اسٹرکچرل اور کنسٹیٹیوشنل آئسومیرزم، اور دوسری بڑی کلاس ہے اس کی اسٹیریو آئسومیرزم۔ اسٹرکچرل آئسومیرزم کو پھر فردر کئی سب کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے جن میں شامل ہیں چین آئسومیرزم، پوزیشن آئسومیرزم، فنکشنل گروپ آئسومیرزم، میٹامیرزم، ٹوٹومیرزم اور رنگ چین آئسومیرزم۔ جبکہ دوسری جانب اسٹیریو آئسومیرزم کو دو مین گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک کو کہتے ہیں کنفیگریشنل آئسومیرزم اور دوسرے کو کنفارمیشنل آئسومیرزم۔ دونوں کو پھر دو سب کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ کنفیگریشنل آئسومیرزم کے دو سب کلاسز کو کہتے ہیں جیومیٹرک آئسومیرزم اور آپٹیکل آئسومیرزم، جبکہ کنفارمیشنل آئسومیرزم کے دو جو سب کلاسز ہیں وہ ہے روٹیشنل آئسومیرزم اور امائن انورژن۔ اس اینیمیشن میں آپ لوگوں کو اسٹرکچرل اور اسٹیریو آئسومیرزم کے درمیان فرق بتاتا ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سپوز یہ ایک کیمیکل فارمولا ہے جو کہ ABCD ایٹم اسٹریٹ چین میں ہے، اور ایک ایٹم جسے X کا نام دیا گیا ہے وہ B کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں اسٹرکچر بالکل سملر ہیں اس وقت۔ اب سب سے پہلے آپ اسٹرکچرل آئسومیرزم کو دیکھیں کہ اسٹرکچرل آئسومیرزم میں کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ X کو دیکھیں وہ B کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اب یہ B سے ٹوٹ کر A کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ X نے اپنی پوزیشن چینج کر دی، یعنی پہلے اس کی کنیکٹیوٹی کسی اور ایٹم B کے ساتھ تھی اور دوسرے آئسومر میں اس کی کنیکٹیوٹی کسی دوسرے ایٹم A کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ایسے دو آئسومرز آپس میں اسٹرکچرل آئسومرز کہلاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اسٹیریو آئسومرز کس طرح بنتے ہیں۔ یہاں پہ آپ ایک آئسومر کی اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں جس میں X B کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اوپر کی طرف سے کنیکٹڈ ہے۔ اس کا جو دوسرا آئسومر ہوگا اس میں یہی X نیچے کی جانب سے کنیکٹ ہوا ہوگا۔ تو ایسے دو آئسومرز اسٹیریو آئسومرز کہلاتے ہیں جس میں دونوں کی کنیکٹیوٹی میں فرق نہیں آتا، یعنی X ایٹم جس ایٹم کے ساتھ ایک آئسومر میں کنیکٹ ہوتا ہے یعنی B کے ساتھ، اسی B کے ساتھ دوسرے آئسومر میں بھی کنیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں اسپیشل جو کنفیگریشن ہے، جو اس کی اسپیشل اورینٹیشن ہے، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ پہلے یہ رائٹ سائڈ کی طرف سے ہوتا ہے، پھر دوسری آئسومر میں وہ لیفٹ سائڈ کی طرف ہوتا ہے۔ مگر یہاں پہ آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ جسٹ روٹیشن سے کوئی نیا اسٹیریو آئسومر نہیں بن سکتا کہ بس آپ نے X ایٹم کو بجائے اوپر کے نیچے کی جانب سے کنیکٹ کیا، یعنی اس کی جو سائڈ ہے وہ چینج کر دی تو اس سے کوئی نیا آئسومر بنے گا، بلکہ ایک اور کنڈیشن بھی اس میں ہے۔ وہ کنڈیشن یہ ہے، وہ دونوں کے لیے ہے، اسٹرکچرل آئسومیرزم کے لیے بھی ہے، اسٹیریو آئسومیرزم کے لیے بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دونوں آئسومرز ایک دوسرے کے اوپر سپر امپوزیبل نہ ہوں۔ اب اگر آپ X کو B کے نیچے کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں اور دوسرا جو آئسومر ہے اس میں X B کے اوپر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو آپ نے جسٹ اس کو روٹیٹ کیا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر سپر امپوزیبل ہوں تو پھر وہ اسٹیریو آئسومر نہیں ہو سکتے۔ یہ تو میں نے جو یہاں پہ اگزامپل دی ہے یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، ادروائز یہ جو میں نے روٹیشن کی ہے X کو اوپر تھا اس کو نیچے لے آیا تو اس سے کوئی اسٹیریو آئسومر نہیں بن رہا ہے۔ اس کے لیے یہ کنڈیشن لازمی ہے کہ جو باقی ایٹمز ہیں مثلا C اور D اس کے ساتھ کچھ اور ایٹمز ہوں گے تو پھر اس لحاظ سے یہ اس کی روٹیشن جو ہے پھر وہ آئسومر بنا سکتی ہے۔ اب سب سے پہلے آتے ہیں اسٹرکچرل آئسومیرزم کی طرف۔ اسٹرکچرل آئسومرز ایسے آئسومرز کہلاتے ہیں جن میں ایٹموں کی ارینجمنٹ بالکل مختلف آرڈر میں ہوتی ہے۔ مثلا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک آئسومر میں X ایٹم B کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو دوسرے آئسومر میں وہی X کسی اور ایٹم A کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوتا ہے۔ اب اسٹرکچرل آئسومیرزم کے سب ٹائپس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے
उसकी जो सब टाइप है चेन आइसोमेरिज्म, उसको समझते हैं। यहाँ पे आप दो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। अब मैं एक वाले स्ट्रक्चर से ऊपर वाले स्ट्रक्चर का, नीचे वाले जो स्ट्रक्चर है उससे मैं ऊपर वाले स्ट्रक्चर का एक आइसोमर बनाता हूँ चेन आइसोमेरिज्म के जरिए से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन का जो मेन स्केलेटन है उसमें से एक ग्रुप एक जगह से टूटकर दूसरी जगह कनेक्ट हो जाता है। तो जब दो आइसोमर्स जिनके कार्बन चेन या उसके स्केलेटन में फर्क होता है तो उसको चेन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की दूसरी सब टाइप को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं आप, दोनों स्ट्रक्चर्स में डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे मौजूद है। अब इसमें बॉन्ड कैसे अपनी पोजीशन को चेंज करता है, आइए मैं आपको अब दिखाता हूं। ये देखें, एक आइसोमर में बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे है तो दूसरे आइसोमर में कार्बन नंबर 2 पे बॉन्ड मौजूद है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड ने टोटली अपनी कनेक्टिविटी को चेंज किया है। पहले ये 1 और 2 कार्बन के दरमियान था, जबकि दूसरे आइसोमर में ये कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान है। तो ऐसे आइसोमर्स पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं। अब पोजीशन आइसोमर्स की एक दूसरी मिसाल, अब डबल बॉन्ड की बजाय मैंने ब्रोमीन को ले लिया है, एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कि कार्बन नंबर 1 के साथ कनेक्टेड है। अब अगर यही सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 1 से टूटकर कार्बन नंबर 2 पे अटैच हो जाए तो ये अपनी पोजीशन इसने चेंज कर दी। तो ऐसे आइसोमर्स जिसमें एक आइसोमर में कोई सब्स्टिट्यूएंट एक एटम के साथ कनेक्टेड हो मेन चेन में और दूसरे में वो किसी दूसरे एटम के साथ कनेक्ट हो, तो ऐसे आइसोमर्स को पोजीशन आइसोमर्स कहा जाता है। एक और मिसाल देख लेते हैं। अब ब्रोमीन की जगह OH ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पे, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है। ये अब अपनी पोजीशन दूसरे आइसोमर्स में चेंज करके दिखाता हूं मैं आपको। ये आप देखें, एक आइसोमर में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन कार्बन नंबर 1 पे है जबकि दूसरे में कार्बन नंबर 2 पे है। ये एक पोजीशन आइसोमेरिज्म की एक तीसरी मिसाल थी। नेक्स्ट जो सब क्लास है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि एक आइसोमर में एक फंक्शनल ग्रुप होता है और दूसरे आइसोमर में दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन दोनों आइसोमर्स का केमिकल फार्मूला सेम होता है। अब मैं आपको एक मिसाल के जरिए से यहाँ पे समझाता हूँ। दोनों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप देखें, अब ये दो आइसोमर्स हैं। एक आइसोमर जो लेफ्ट साइड पे है वो अल्कोहल है, जबकि राइट साइड पे जो आइसोमर है वो ईथर है। तो इन दोनों आइसोमर्स को आप देखें कि इनका बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया है। तो ऐसे आइसोमर्स जिनका केमिकल फार्मूला सेम हो लेकिन उनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, तो ऐसे आइसोमर्स को फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहते हैं। एक और मिसाल देखते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक अल्डिहाइड कंपाउंड है। अब एक एनिमेशन के जरिए से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखें, अब अल्डिहाइड कीटोन में तब्दील हो गया है राइट साइड। तो अब ये दो आइसोमर्स जो हैं इनका केमिकल फार्मूला तो सेम है, लेकिन अगर आप देखें तो इनका फंक्शनल ग्रुप अब डिफरेंट हो गया है। लेफ्ट साइड वाला जो है वो अल्डिहाइड है जबकि राइट साइड वाला कीटोन बन चुका है। तो ऐसे दो आइसोमर्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। एक और मिसाल के जरिए से मैं आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म समझाता हूँ। इसमें मैंने मिसाल ली है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब इस एनिमेशन को ज़रा देख लें। इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, यानी कनेक्टिविटी चेंज हो गई। पहले मिथाइल ग्रुप जो था वो एक कार्बन के साथ अटैच था, अब दूसरे एटम के साथ अटैच्ड हो गया है। इसी तरह हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन के साथ अटैच था, जबकि अब ये हाइड्रोजन चला गया है और कार्बन के साथ उन्होंने अपना बॉन्ड बना लिया है। अब यहाँ पे आप देखें फंक्शनल ग्रुप में तब्दीली आ गई है। एक जो लेफ्ट साइड पे है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जबकि राइट साइड पे जो है वो ईस्टर है। ये दोनों आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एक और किस्म है जिसे मेटामेरिज्म कहा जाता है। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि दो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप के राइट और लेफ्ट पे जो कार्बन की तादाद होती है उसमें फ़र्क होता है। यहाँ पे आप ईथर की एक मिसाल देख रहे हैं जिसके दोनों तरफ दो दो कार्बन हैं। तो इसका जो आइसोमर बनेगा, ये आप देखें, ये कार्बन ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और दूसरे जानिब चला गया। तो अब दूसरा आइसोमर जो है उसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे एक कार्बन है और राइट साइड पे 3 कार्बन है, जबकि जो लेफ्ट साइड वाला कंपाउंड है या आइसोमर है उसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो दो कार्बन मौजूद हैं। तो ये वाले आइसोमर्स मेटामर्स कहलाते हैं।
मेटामेरिज्म के कुछ और मिसालें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहली वाली एग्जांपल तो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी। ये दूसरी एग्जांपल में देखें कि C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये एक ग्रुप है जो इसमें मौजूद है और इसके दोनों जानिब दो दो कार्बन हैं। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O के लेफ्ट साइड पे एक कार्बन हो गया है और दूसरी साइड पे 3 कार्बन है। तो ये दो आइसोमर्स आपस में मेटामर्स हैं। इसी तरह ये इस मिसाल को देखें, दरमियान में एक अमाइन ग्रुप है और उसके राइट और लेफ्ट साइड पे दो दो कार्बन हैं, जबकि इस आइसोमर में एक साइड पे एक कार्बन है और दूसरी साइड पे 3 कार्बन है। तो ये दो आइसोमर्स भी आपस में मेटामर्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एक और किस्म टाटोमेरिज्म कहलाती है। टाटोमेरिज्म में आप यहाँ पे कीटोन की एक एग्जांपल देख सकते हैं। अब मैं आपको एनिमेशन के जरिए से समझाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि पहले वाला जो आइसोमर है वो कीटोन है, जबकि दूसरा जो आइसोमर बन गया वो अल्कीनॉल बन गया है, यानी वो एक अल्कोहल है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है। तो ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करे और साथ ही साथ डबल बॉन्ड भी अपनी पोजीशन चेंज करे, तो ऐसे दो आइसोमर्स टाटोमर्स कहलाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड वाला जो कंपाउंड है वो एक कीटोन है, जबकि राइट साइड वाला कंपाउंड एक अल्कोहल है और उसमें डबल बॉन्ड भी मौजूद है। टाटोमेरिज्म की ये कुछ और मिसालें भी यहाँ पे दी गई हैं। तो टाटोमेरिज्म इनोल और कीटो फॉर्म में हो सकते हैं, लैक्टेम फॉर्म में ये पॉसिबल हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और NH। इसी तरह ये अमाइड में पॉसिबल होता है। आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन अपनी पोजीशन चेंज करता है और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता है। तो ये आपस में अमाइड और इमिडिक आइसोमर्स हैं। इसी तरह अमाइन और इमीन फॉर्म आप देख सकते हैं, इसमें ये डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो इधर आ जाएगा। तो ऐसे आइसोमर्स टाटोमर्स कहलाते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की ये वाली किस्म रिंग चेन आइसोमरिज्म कहलाती है। इसमें क्या होता है कि एक कंपाउंड स्ट्रेट चेन का होता है और दूसरा कंपाउंड रिंग फॉर्म में होता है। इन दोनों कंपाउंड का केमिकल फार्मूला सेम होता है, लेकिन एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होता है और दूसरा रिंग फॉर्म में होता है। अब मैं आप लोगों को ये एनिमेशन दिखाता हूँ। ये आप देखें, सेम केमिकल फार्मूला है दोनों कंपाउंड का, लेकिन जो लेफ्ट साइड पे है वो स्ट्रेट चेन है और राइट साइड पे एक रिंग कंपाउंड है। तो ये दोनों आइसोमर्स आपस में रिंग चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। एक प्रोपीन है और दूसरा साइक्लोप्रोपेन है। अब आइसोमरिज्म की दूसरी बड़ी किस्म स्टीरियो आइसोमर्स। इसमें एटमों की तरतीब नहीं बदलती, बल्कि इसमें एटमों की स्पेशल ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। ऐसे आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और उसकी जो बॉन्ड्स की सीक्वेंस होती है वो भी सेम होती है, यानी कनेक्टिविटी चेंज नहीं होती। जो एटम जिस एटम के साथ कनेक्टेड है उसी के साथ कनेक्टेड रहेगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा कि स्पेस में उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। तो ऐसे आइसोमर्स को स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है। यहाँ पे आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि B के साथ X जो एटम है वो ऊपर की तरफ से कनेक्टेड है और अब ये नीचे की जानिब से कनेक्ट हुआ है। तो लिहाजा X ने अपनी पोजीशन तो नहीं चेंज की, यानी जिस एटम के साथ वो कनेक्टेड था उसी एटम के साथ अब भी कनेक्टेड है, लेकिन क्या हो गया, इसने सिर्फ अपनी स्पेशल ओरिएंटेशन चेंज कर दी। टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसकी पहली किस्म जिसे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स डबल बॉन्ड के ऊपर और नीचे जो ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं उनकी तरतीब के लिहाज से ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनते हैं। तो ये जो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं इसकी पेयर दो पेयर्स में होते हैं, एक को सिस कहा जाता है और दूसरे को ट्रांस कहा जाता है। यहाँ पे जो एग्जांपल इस वक्त आप देख रहे हैं वो सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म का मतलब ये है कि सेम टाइप की जो ग्रुप्स हैं वो एक साइड पे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर ग्रुप ऊपर हैं दोनों और H दोनों नीचे हैं। और इसका ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगा, जब दोनों ग्रुप अपनी ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। अब क्या हो गया ट्रांसफॉर्म में कि एक आर ऊपर की जानिब से कनेक्टेड है जबकि दूसरा आर नीचे की जानिब से कनेक्टेड है। इसी तरह एक हाइड्रोजन नीचे की जानिब से है जबकि दूसरा हाइड्रोजन ऊपर की जानिब से कनेक्ट हो रहा है। लिहाजा ग्रुप्स जो हैं वो अपोजिट साइड से कनेक्टेड हैं डबल बॉन्ड के साथ। तो ऐसे आइसोमर्स ज्योमेट्रिक आइसोमर्स या सिस ट्रांस आइसोमर्स कहलाते हैं। इसकी दूसरी किस्म को ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में एक किस्म है एनांशोमर्स।
इनांशोमर्स क्या होते हैं, वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि इनांशोमर्स किस तरह होते हैं। ये लेफ्ट साइड पे जो कंपाउंड दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स राइट साइड की तरफ हैं, और दूसरे की अब मैं देखता हूं कि किस तरह आइसोमर इसका बनता है। ये आप देखिए, इन्होंने सिर्फ क्या किया कि ये रोटेट होकर अपनी स्पेशल ओरिएंटेशन इन्होंने चेंज कर दी है, और अब ये मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड पे कंपाउंड है इसको डी आइसोमर कहा जाता है, और जो राइट साइड पे कंपाउंड अब बन रहा है उसको एल आइसोमर कहा जाता है, और ये दोनों आइसोमर्स आपस में अब इनैंशोमर्स हैं। इनैंशोमर्स वर्सेस डायस्टीरोमर्स, इनमें आपको इस मिसाल से फर्क समझ आ जाएगी। ये दोनों आपस में इनैंशोमर्स हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। इसी तरह ये दो कंपाउंड्स भी आपस में मिरर इमेजेस हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें इस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है, जबकि इसमें ये लेफ्ट साइड पे है, और इसकी इस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पर है, जबकि यहाँ पे ये राइट साइड पर है। तो लिहाजा ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो ये भी आपस में इनैंशोमर्स हैं। अब डायस्टीरोमर्स को देखें। इस कंपाउंड और इस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बिल्कुल सेम है, और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हैं, लेकिन ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है और ना ही एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो स्टीरो आइसोमर्स तो हों, लेकिन एक दूसरे के ना तो वो मिरर इमेजेस हों और ना एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हों, तो ऐसे दो कंपाउंड्स को डायस्टीरोमर कहा जाता है। यहाँ पे आप देखें, क्या ये इसका मिरर इमेज है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोजेबल है? नहीं है। और ये आपस में स्टीरो आइसोमर्स हैं? यस। तो ऐसे स्टीरो आइसोमर्स जो नॉन मिरर इमेजेस हों, नॉन सुपर इम्पोजेबल हों, डायस्टीरोमर्स कहलाते हैं। ये दोनों भी आपस में नॉन मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। ये वाले दो भी आपस में नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन मिरर इमेजेस। ये दो भी आपस में नॉन मिरर इमेजेस और नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। अब आते हैं रोटेशनल आइसोमर्स की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दो ग्रुप्स आपस में एक सिंगल बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड हैं, और उसमें से एक ग्रुप पहिए की तरह रोटेट कर रहा है। तो अब ये मुख्तलिफ आइसोमर्स बना रहा है। कभी कभार ये जो ग्रुप्स हैं वो उस पीछे वाले ग्रुप्स के बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं, जिसको एक्लिप्स फॉर्म कहते हैं, और कभी कभार ये एटम्स एक दूसरे से काफ़ी फासले पर हो जाते हैं। तो ये ऐसे आइसोमर्स रोटेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। ये आप देखें इस एनिमेशन को, ये बिल्कुल एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट रोटेट कर रहा है। तो ये किसी आइसोमर में तो ये बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं, और किसी आइसोमर में ये एक दूसरे से काफ़ी जो उसका डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है। तो ये रोटेशनल आइसोमर्स डिपेंड करता है कि उनके दरमियान जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उस आमने सामने वाले ग्रुप्स, क्या वो उनका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है या कम है, या उसका एंगल कितना है। तो ये आपस में कितना एंगल बना रहा है, इस लिहाज से ये डिफरेंट रोटेशनल आइसोमर्स बनते हैं। इस चार्ट से आपको रोटेशनल आइसोमर्स की एनर्जी का भी पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस आइसोमर में मिथाइल ग्रुप्स बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हैं, और हाइड्रोजन भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जब आप इनको रोटेट करते हैं और ये मिथाइल ग्रुप उस पीछे वाले हाइड्रोजन के आमने सामने आ जाता है, और इसी तरह सारे ग्रुप्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो इसकी एनर्जी फिर थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। और जब आप इसको मज़ीद रोटेट करते हैं और मिथाइल ग्रुप इस मिथाइल ग्रुप के थोड़ा सा करीब आ जाता है बनिस्बत इस आइसोमर के, इस आइसोमर में मिथाइल ग्रुप थोड़ा सा इसके करीब है, लेकिन ये बिल्कुल आमने सामने नहीं है जिस तरह इसमें आमने सामने ग्रुप्स आ रहे हैं। तो इसकी एनर्जी एज कम्पेयर टू दिस कंपाउंड थोड़ी सी कम होगी, लेकिन इसकी एनर्जी इस कंपाउंड से थोड़ी सी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप बिल्कुल अपोजिट साइड पे हैं और यहाँ पे करीब आ चुके हैं। अब इनको फर्दर रोटेट करें तो मिथाइल ग्रुप आपस में आमने सामने आ जाएंगे। अब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और इसकी एनर्जी तमाम आइसोमर से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें बड़े ग्रुप्स आपस में आमने सामने आ रहे हैं। अब इसको रोटेट करते जाएं तो इसकी एनर्जी इसी तरीके से बढ़ती और कम होती जाती है। और आइसोमेरिज्म की आखिरी किस्म अमाइन इन्वर्जन है।
यहाँ पे آپ ٹاپ رائٹ پہ جو امبریلا کی اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں تو یہ فلپنگ ان سائڈ آؤٹ ہو رہا ہے. یعنی چھتری آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ بارش ہو رہی ہو اور تیز ہوا چل رہی ہو اور آپ کے پاس چھتری ہو تو چھتری تیز ہوا کی وجہ سے کبھی کبھار الٹ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح امائن انورژن بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں ہائیڈروجن میتھائل اور میتھائل گروپ نائٹروجن کے نیچے ہیں جبکہ جو دو انشیئرڈ پیئر آف الیکٹران ہے وہ اوپر کی جانب سے ہیں اور یہ پھر اسی طرح چھتری کی طرح بالکل انورٹ ہو جاتا ہے. یعنی یہ تین گروپس اوپر چلے جاتے ہیں اور جو لون پیئر آف الیکٹرانز ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں امائن انورژن اور اس کو امائن انورژن آئسومیرزم کہتے ہیں. تو یہاں پہ میرا آج کا لیکچر ختم ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ اس لیکچر کو غور سے سنا. سو تھینک یو اور اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.